اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر تلوار رکھ دیے تھے، تلوار چلا دیے تھے۔ اور مسلمانوں یاد رہے ذی الحجہ کیا ہے تو اسلام کا آخری مہینہ ہے، اور محرم الحرام کیا ہے تو اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو بھی امام حسین کربلا میں قربانی پیش کر رہے ہیں، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ تو اسلام شروع ہو رہا ہے تو قربانی سے شروع ہو رہا ہے، اور اسلام ختم ہو رہا ہے تو قربانی پہ ختم ہو رہا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رہے آخر اسلام مسلمان مومن کس کا نام ہے؟ ذرا ہم اس پر غور تو کریں۔ تو مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 12 حدیث نمبر 2، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ وعن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ مسلمانوں عبداللہ ابن عمر ہے کون؟ تو حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر جیسا متقی نہیں دیکھا۔ یہ کس کا بیان ہے؟ میمون بن مہران کہتے ہیں، اور وہ حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ وعن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمسن، کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ آخر وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ بہت سارے لوگ جان بھی رہے ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اب اسے آپ مجھ سے ترتیب وار سماعت کریں گے۔ نمبر 1، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی شہادت دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ نمبر 2، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکات ادا کرنا۔ نمبر 4، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، وَالْحَجْ، اور حج کرنا۔ ان 5 باتوں کو مسلمانوں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ مگر پہلے نمبر پر کیا رکھا گیا؟ اللہ و رسول پر ایمان لانا، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے تو نماز قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے تو زکات ادا کرنا، چوتھے نمبر پر کیا ہے تو مسلمانوں روزہ رکھنا رمضان المبارک ہے، اور 5ویں نمبر پر کیا ہے تو حج کرنا۔ مگر مسلمانوں سے غور تو کرو کہ پہلے نمبر پر یہ رکھا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو پہلے نمبر پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا۔ اگر کوئی بندہ کہے میں صرف خدا کو مانتا ہوں اور مصطفیٰ کو نہیں مانتا، تو کیا اسے مومن کہا جائے گا؟ ہرگز وہ مومن نہیں ہوگا۔ آئیے دنیاوی مثال دے کر کے سمجھا رہا ہوں۔ شکر وہ پانی ملنے سے شربت بنتا ہے، اب گرم وہ سرد تار ملنے سے بجلی کا پاور بنتا ہے، اور اللہ رسول کو ملا دینے سے ایمان بنتا ہے۔ اب مسلمانوں ذرا غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی بندہ صرف خدا کو مان کر کے ہرگز مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے ہم نشین کر لیں کہ ایمان ملتا ہی ہے در مصطفیٰ پہ۔ تو پہلے نمبر پر کیا رکھا گیا؟ اللہ و رسول پر ایمان لانا۔ اب دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز عمل ہے، زکات عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے۔ اعمال بعد میں، ایمان پہلے ہے۔ اعمال بعد میں، ایمان پہلے ہے، اور ایمان پہلے رکھ کر کے بتا دیا گیا تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہ کیا جائے گا اگر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اسی لیے اعمال کا ذکر بعد میں کیا گیا اور ایمان کا ذکر پہلے کیا گیا۔ تو پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ و رسول پر ایمان لانا۔ اب یہ کہ ایمان لانے کے بعد تو کیا کریں؟ نماز قائم کریں اور زکات دیں۔ قرآن پاک میں جو تھوڑا بہت بھی قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے وہ سمجھ لیں گے، جگہ جگہ قرآن میں کوئی سپارہ باقی نہیں ہوگا کہ نہ آیا ہو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات دو، نماز قائم کرو زکات دو، جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے۔ اب مسلمانوں یہ
अरकाने इस्लाम में भी ईमान के बाद नमाज और तीसरे नंबर पर ज़कात। और कुरान में भी जहां जहां आया है पहले नमाज और फिर ज़कात, तो पता चला कि ज़कात पर नमाज को मुकद्दम किया गया है। क्यों मुकद्दम किया गया है? इसलिए कि नमाज बदनी इबादत है और ज़कात माली इबादत है। नमाज बदन से अदा की जाती है और ज़कात दौलत से निकाली जाती है। नमाज का ताल्लुक बंदे और खुदा से है और दौलत ज़कात का ताल्लुक बंदों से है। इसलिए कि ज़कात किसी गरीब बंदे ही को दिया जाएगा। तो अब मुसलमानों, इसीलिए नमाज को ज़कात के ऊपर फौकियत दी गई है। पहले नमाज का जिक्र किया गया और उसके बाद ज़कात का जिक्र किया गया। तो नमाज क्या है? बदनी कुर्बानी, और ज़कात क्या है? माली कुर्बानी। इसी कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा मुसलमानों, रोजा रखना क्या है? तो अपनी नफ्स से जिहाद करना, वो जिस्म की कुर्बानी, और हज करना क्या है? तो दौलत की कुर्बानी। और पता चला ईमान लाने के बाद दो बार कुर्बानी, 2 मरतबा जिस्म की कुर्बानी और 2 मरतबा दौलत की कुर्बानी। ईमान लाने के बाद 2 मरतबा जिस्म की कुर्बानी क्या है? तो 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ेगा तो 24 घंटा में 2 घंटा उसे वक्त भी कुर्बान करना है, अपने जिस्म को भी कुर्बान करना है। और मुसलमानों, जब ज़कात देगा तो ज़कात में दौलत की कुर्बानी है, ज़कात में मालो सर की कुर्बानी है। तो पता ये चला कि 1 मरतबा जिस्म की कुर्बानी और 1 मरतबा दौलत की कुर्बानी, फिर दोबारा जिस्म की कुर्बानी और फिर ला करके लास्ट में रख दिया गया दौलत की कुर्बानी। तो 2 मरतबा जिस्म कुर्बान करो और 2 मरतबा दौलत को कुर्बान करो। यही है अरकाने इस्लाम। पता चला इस्लाम किसी और चीज का नाम नहीं है, कुर्बानी देने का नाम इस्लाम है। इस्लाम किसी और चीज का नाम नहीं, कुर्बानी देने का नाम इस्लाम। अरकान इस्लाम ये 5। पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, और दूसरे नंबर पर क्या है? तो नमाज कायम करना, और तीसरे नंबर पर, ये भी बात अच्छी तरह सुनो, तफसीर नईमी में पहले ही जिल्द में इसका जिक्र किया गया। कोई बहुत बड़ा अल्लामा हो, कोई बहुत बड़ा मुफ्ती हो, कोई बहुत बड़ा अपने आप को मुहद्दिस कहलाता हो, अगर नमाज न पढ़े, अहमद यार खान नईमी लिखते हैं, सब मकरो फरीब है अल्लाह की बारगाह में। ऐसे बंदे को मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। बात को समझिएगा, तफसीर नईमी के पहले जिल्द में उन्होंने बयान किया है। अगर कोई बहुत बड़ा वाइस हो, बहुत बड़ा खतीब हो, बहुत बड़ा आलिम हो, मुकर्रिर बेबदल हो, लेकिन क्या लिखे हैं? सब मकरो फरीब है, अगर उसके अंदर नमाज की पाबंदी नहीं है। तो ईमान लाने के बाद अगर सबसे जरूरी काम है तो 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना। अगर कोई इस पर यह दलील पेश करे कि जर्रा भर भी ईमान होगा, नबी बचा लेंगे, ऐसा होगा, इस तरह बच लेंगे, 1 मरतबा कलमा पढ़ लिया जाए, इस तरह बच जाएंगे, तो इमाम मोहम्मद गजाली 955 साल पहले के बुजुर्ग अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, जहां पर लोग अमल न करते हो वहां फजीलत सुनाने वाला आलिम कि गोया और कौम को बर्बाद कर रहा है, आबाद नहीं कर रहा है। कौम को खशियत इलाही सुनाओ ताकि उनके दिल के अंदर खुदा का खौफ आ जाए और लोग नमाजों की पाबंदी करने लगे। अगर ये मान लिया जाए कि बस जर्रा भर ईमान है, बस इसी से नजात मिल जाएगी, तो मैं कहूंगा जो बुजुर्गान दीन कुर्बानी पेश की, वो काहे को कुर्बानी पेश की? क्या वो नहीं जानते थे क्या कि बस इतना ही से छुटकारा हो जाएगा? क्या जरूरत थी कुर्बानी पेश करने की? 20 या 22 साल तक ख्वाजा गरीब नवाज सूखी रोटी को पानी में भिगो भिगो करके खाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा, मुसलमानों गरीब नवाज की जो ज़ाहिरी जिंदगी रही तकरीबन 100 साल से जायद, गौसे आज़म की ज़ाहिरी जिंदगी 91 साल की रही। बुजुर्गान दीन की जब तारीख को उठाकर देखते हैं तो क्या पता चलता है? इमाम आज़म, याद है शरीयत के 4 इमाम हैं, पहले है इमाम आज़म अबू हनीफा, उनका फतवा यह है कि जो नमाज न पढ़े तो बेनमाजियों को जेल में कैदी बना दिया जाए, अगर इस्लामी हुकूमत हो उस वक्त तक, जब तक कि वो सच्ची तौबा न करे। मगर इमाम शाफई ने क्या फरमाया? बेनमाजी वाजिबुल कत्ल है, उनको कत्ल कर दिया। तो हम बुजुर्गों के नाम पर याद रहे, फातिहा नियाज तो खूब करना जानते हैं, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं करते कि जरा पढ़ ले कि बुजुर्गों का फतवा क्या है, उनका ऐलान क्या है, उन लोगों ने अपनी जिंदगी को किस तरह से वो लोग अपनी जिंदगी को गुजारे, इस पर गौर नहीं करते। अब ये
कि अरकान इस्लाम को आप लोगों ने समाप्त किया कि पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, और दूसरे नंबर पर नमाज कायम करना, और तीसरे नंबर पर ज़कात देना, और चौथे नंबर पर क्या है मुसलमानों तो रोजा रखना, और पांचवी नंबर पर क्या है तो हज करना। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है सूरह ताहा आयत नंबर 124 पारा नंबर 16, वमन आरदा अन ज़िक्री, और जिसने मेरी याद से मुंह को फेर लिया, जिसने मेरी बंदगी से मुंह को फेर लिया, जिसने मेरी इबादत से मुंह को फेर लिया, का उसके लिए तंग जिंदगानी है। अल्लाह उसकी जिंदगी की बरकत को छीन लेता है, उसकी जिंदगी को तंग फरमा देता है। अल्लाह का वादा है जब कल कयामत के दिन वो कब्र से निकाला जाएगा तो अंधा निकाला जाएगा, वो दर दर की ठोकरें खा रहा होगा, पूछा जाएगा अंधे क्यों हो, तो जवाब देगा हम नमाज न पढ़ के अंधे बन गए। तो कुरान पाक से क्या साबित हुआ कि जो नमाज न पढ़े उसकी दुनिया भी तबाह और आखिरत भी बर्बाद। नमाजों की पाबंदी जरूरी है, ये बात याद रहे। मुझसे पेशतर आपने हजरत अल्लामा मौलाना रहमतुल्लाह साहब किबला से समाअत किया कि सुकून कहीं और नहीं है, दौलत खजाने में सुकून नहीं है। याद रहे कामयाबी किस चीज का नाम है। हमने क्या समझ रखा है दौलत को इकट्ठा कर लो कामयाब हो जाओगे। अगर दौलत ही का नाम कामयाबी होता तो जो लोग दिल्ली गए होंगे या आप जाएंगे तो जाकर देखिएगा सड़क के मेन सड़क के एक जानिब निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का मज़ार है, और ठीक उसके दूसरी जानिब हुमायूं बादशाह की कब्र है। हुमायूं के कब्र से आज चीख चीख करके ये सदा आ रही है, ऐ दुनिया वालों मेरी बादशाही मिट गई, निजामुद्दीन औलिया की फकीरी जिंदा है। कोई भी हुमायूं की कब्र पे नहीं जाता है, जो भी जाते हैं सबके सब निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही के कब्र पे जाते हैं। कहाँ गई सल्तनत, कहाँ गई बादशाही, कहाँ गई हुकूमत, कहाँ गया खजाना, जरा जा करके देखिएगा। मुसलमानों हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह जिसको अकबर कहते हैं, अकबर दीने इलाही बनाया था, मुजद्दिद अल-फ़सानी उसके ईंट से ईंट बजा दिए थे। आज जाकर देखिएगा अकबर के कब्र पे कुत्ता पेशाब करने नहीं जाता है, लेकिन मुसलमानों सरहिंद जाकर देखिएगा मुजद्दिद अल-फ़सानी के कब्र पे अपने तो अपने हैं, बेगाने जाकर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। कामयाबी कहाँ गई, दौलत कहाँ गई। और जहां तक दौलत को अगर हमने कामयाबी समझ रखा तो याद रहे इंसान दौलत के अंबार इकट्ठा कर ले और डॉक्टर बोल दे बस 15 दिन का 10 दिन का मेहमान है उसके बाद चला जाएगा, उससे पूछो क्या कीमत है दौलत की, वो बताएगा क्या हैसियत है दौलत की, और हमने और आपने क्या बना रखा। तो आप लोगों ने ये समाप्त किया सूरा राद आयत नंबर 28 पारा नंबर 13 मौलाना रहमतुल्लाह साहब पेश किए, अला बेसिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों को सुकून है। यानी दिलों को इत्मीनान कहाँ मिलेगा, सुकून तुम कहाँ पाओगे, तो कहीं और नहीं, जिक्र इलाही में है, अल्लाह की याद में है, नमाज में है, तस्बीह में है। पता चला दिल को सुकून न ताजमहल में मिलेगा, न आलीशान बिल्डिंग में पाओगे, न खजाने में सुकून मिलेगा। याद रहे मुसलमानों जब हम दिल को गिसा नहीं देंगे तो आज आप लोग सुन रहे हैं बड़े बड़े लोग अटैक पर जा रहा है और हलाक हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, दिल के मरीज हो जा रहे हैं। कुरान से ये बात साबित है कि दिल की गिसा क्या है, तो अल्लाह की याद है। जब हम लगातार अल्लाह की याद को बंद कर देंगे, नमाज छोड़ देंगे, इबादत छोड़ देंगे, जुमा को गायब कर देंगे और दिल को गिसा न मिलेगी तो बताइए दिल परेशान होगा कि नहीं होगा, दिल बेकरार होगा कि नहीं होगा, इंसान अटैक का मरीज बनेगा कि नहीं बनेगा, यकीनन बनेगा। जिस्म की खुराक दुनिया की गिसा है और दिल की खुराक अल्लाह की इबादत है। शायर क्या फरमाता है, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। अगर दिल को सुकून पहुंचाना चाहते हो तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो। तो अरकान इस्लाम आप लोगों ने समाप्त किया। अब ये जानते हैं कि सारे सवाब के लिए मैं फिर पुराने पाक से मैं साबित करूं पहले, उसके बाद हदीस पाक को पेश करूंगा। सूरा हश्र आयत नंबर 10 पारा नंबर 28, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और उनसे बाद में आने वाले लोग यक़ूलून ये कहते हैं, ये दुआ मांगते हैं, रब्बना इग़फिर लना, ऐ हमारे रब तू हमारी बख्शिश फरमा, वले इख़वानिना लज़ीना, और हमारे उन भाइयों की भी बख्शिश फरमा, सबक़ूना बिल ईमान, जो ईमान की हालत में हमसे पहले दुनिया से चले गए। ये कुरान की आयत को पेश किया मैं। मुसलमानों कुरान से ये बात साबित है
कि ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि तुम पहले अपने लिए दुआ करना और उसके बाद उनके लिए दुआ करना। सबकुना बिल ईमान, जो ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए। पता चला मोमिन अपने लिए भी दुआ करेगा और उन लोगों के लिए भी दुआ करेगा जो लोग दुनिया से चले गए। अब कोई कहे कि मर जाने वालों के नाम पर कोई कितना ही दुआ करे उसको फायदा नहीं पहुंचता है, तो उसका अकीदा कुरान के खिलाफ है। और जिसका अकीदा कुरान के खिलाफ हो, सब कुछ तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। ले लिया कुरान से साबित। तुम अपनी मगफिरत के लिए भी दुआ करो और उन लोगों के लिए भी दुआ करो जो लोग ईमान की हालत में दुनिया से चले गए। मगर ये बात अच्छी तरह याद है, पहले अपने लिए दुआ की जाएगी, उसके बाद किसी और की। पहले अपने नाम पर कुर्बानी की जाएगी, क्योंकि बहुत जहालत। आइए पहले इस पर मैं चंद दलीलों को पेश कर दूं। नमाज़े जनाजा में तो याद रहे, नमाज़े जनाजा में दो बातें फर्ज हैं। हाथ बांध करके अदब से खड़ा रहना, जिसको कयाम कहते हैं, पहला फर्ज। और दूसरा फर्ज यह है कि 4 मरतबा इमाम की तकबीर के बाद तकबीर बोल देना, अल्लाह अकबर। ये दो बातें नमाज़े जनाजा में फर्ज। अगर कोई बिल्कुल जाहिल हो, गमार हो, और जाकर ये 2 काम कर दे तो उसने फर्ज पे अमल कर लिया। बात को समझिएगा। और 3 बातें क्या है मुसलमानों? तो सुन्नत मुक्तदा जरूरी है। वो 3 बातें क्या है? तो 4 तकबीर नमाज़े जनाजा में। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ना है, और दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिम, और तीसरी तकबीर के बाद मय्यत के हक में दुआ, और चौथी तकबीर बोलने के बाद बहुत लोग हाथ बांधे बांधे सलाम फेरते। हाथ बांध कर नहीं सलाम फेरना है, हाथ को खोल देना है चौथी तकबीर के बाद, और उसके बाद सलाम फेर देना है। चौथी तकबीर के बाद नमाज़े जनाजा में कुछ पढ़ा नहीं जाता है। पहली तकबीर के बाद सना, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिम, तीसरी तकबीर के बाद से मय्यत के हक में दुआ। तो मय्यत के हक में दुआ बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम और लोग याद भी नहीं करते। मगर जरा गौर करें। आइए एक हदीस पाक पेश कर रहा हूँ, उसको जरा गौर से सुनिएगा। हम अगर किसी के नमाज़े जनाजा दुरुस्त सही नहीं पढ़ेंगे तो ये हम कैसे उम्मीद कर लिए कि हमारे नमाज़े जनाजा लोग दुरुस्त आके पढ़ेंगे? तंजुल उम्माल हदीस नंबर 43672, मुसन्नफ़े अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 178। भाई मल मासियत, जैसा चाहो अमल करो। हदीस पाक है, गौर कीजिएगा। जो लोग ज़िना करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग दूसरों को फरेब देते हैं, जो लोग दूसरी के औरतों के इज्जत आबरू पे हमला करते हैं, इस हदीस को जरा सेट करेंगे अपने ऊपर। नबी फरमाते हैं, ए मल मासियत, जैसा चाहो अमल करो, जो चाहो करो, कमा तदीनो तो दान, मगर जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें बदला मिलेगा। तुम किसी की इज्जत लूट लिए हो तो क्या समझ रहे हो कि तुम्हें जो मिलेगी वो पाक मिलेगी? बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। हम समझ रहे हैं हम बड़ा अक्लमंद हैं, हमारी अक्लों को खराब कर दिया। क्योंकि कुरान पाक में सूरह नूर में इसका जिक्र किया गया कि गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं, और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं, और सुथरी औरतें सुथरे मर्दों के लिए हैं, और सुथरे मर्द सुथरी औरतों के लिए हैं। कुरान से जब बात साबित है, उसके बाद भी हम अक्ल चलाते हैं। याद रहे, अल्लाह का वादा है कि बहुत अक्ल न चलाओ, जब अल्लाह की गिरफ्त आएगी तो तुम में बड़े बड़े अक्लमंद हैं, उनकी अक्लें खराब हो जाएगी। तो हदीस पाक में क्या? एमल मासियत, जैसा चाहो अमल कर, अमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें बदला मिलेगा। अब तुम जानते हो कैसा किए हो, बताने की जरूरत नहीं है। हदीस पाक में क्या है? तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें बदला मिलेगा। अब कमाल की बात, तामीरे अदब अल्लामा बदरुद्दीन साहब किबला ने लिखा है, जो पहले हिस्से की किताब है, उसमें आखिर में जाकर आखिर से पहले उन्होंने एक सबक कायम किया जिसका नाम ही रख दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं उसको पढ़ा, हदीस को देखा, तो मैंने कहा हजरत ने लग रहा है इसी हदीस को उठा करके खुलासा करके बयान कर दिया। और हदीस पाक में नबी फरमाते हैं, इमल मासियत, जैसा चाहो तुम करो, कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा ही बदला पाओगे। अब तुम जान रहे हो कहां कहां मक्कारी किए हो, बताने की जरूरत नहीं है। हर बंदा अपनी हैसियत जान रहा है कि कहां कहां वो दगाबाजी किया है, कहां कहां वो मक्कारी किया है, कहां कहां वो कलाकारी किया है। तू जैसा किया है वैसा ही पाने के लिए तैयार रहना, घबरा क्यों रहे हो? जब तुम जबानी अच्छे हो, क्योंकि हर लोग अपनी जबान से बहुत अच्छे होते हैं, हर लोग अपने पड़ोसियों की बुराई करते हैं, और खुद लगता है कि ये बहुत नेक परहेजगार मुत्तकी दीनदार,
जबकि इंसान बहुत नेक परहेजगार मुत्तकी दीनदार बन जाए तो उसकी झलक उसके दोस्तों में भी फैल जाया करती है, मगर सब लोग बहुत नेक बनते। तब बहरहाल ये कि बज़ाहिर ये छोटी हदीस, लेकिन इस पर अगर गौर करेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अब ये कि जो मैं पेश कर रहा था कि नमाज़े जनाजा में, तो नमाज़े जनाजा अगर हम दूसरों के लिए अगर बेहतर दुआ नहीं कर पाते तो कैसे हम ये उम्मीद रखते कि हमारे में बेहतर दुआ की जाएगी, अच्छी तरह लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं नमाज़े जनाजा की दुआ याद नहीं, जबकि हमें और आपको मालूम है कि गाहे बेगाहे आए दिन हमको इसकी जरूरत है, हमें भी मरना है। इस दुनिया की हकीकत क्या है, याद रहे मरने से पहले कोई बंदा ये दावा करता है, याद रहे मरने से पहले बंदा का दावा क्या है, मैं मकान का मालिक, मैं दुकान का मालिक, मैं हवेली का मालिक, मैं खजाने का मालिक, मैं जमीन जायदाद का मालिक, मैं कंपनी का मालिक, मैं स्कॉर्पियो का मालिक, मैं मोबाइल का मालिक। अचानक रूह निकल जाती है तो ये दुनिया इतनी बेवफा है कि जेब से मोबाइल को निकाल लिया गया, कलाई से घड़ी को खोल लिया गया, जिस्म से सूट बूट को उतार लिया गया और जल्दी जल्दी नहला करके कफन पहना दिया जाता है। और हमारी माँ बहनों का हाल ये है कि मरने से पहले कोई दावा करता है ये हमारी बुआ है, ये हमारी बीवी है, ये हमारी चची है, ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है। मरने से पहले सबके सब ये दावा ठोकते रहते हैं, लेकिन ये दुनिया इतनी बेवफा है कि जब जिस्म से रूह परवास कर जाती है तो नाक से नथिया को निकाल लिया गया, कान से झुमकर को खोल लिया गया, गले से हार को निकाल लिया गया, सर से मांटिका को खोल लिया गया, हाथों से कंगन को उतार लिया गया, पैर से पासे को उतार लिया गया। जरा गौर तो करो ये कितनी बेवफा दुनिया है जिसके लिए हम और आप रातों दिन मक्कारी कर रहे हैं, इसी दुनिया को हासिल कर रहे हैं, रातों दिन फरेब दे रहे हैं कि हम कितना दुनिया हासिल कर लें, कितना दुनिया हासिल। आला हजरत असीमुल बरकत फरमाते हैं, याद रहे मैं अक्सर आला हजरत ही का कलाम पेश करता हूँ, अगरचे बड़ा दकीक होता मगर सुन लीजिए, नहीं समझ पाएंगे पूरी बात लेकिन कुछ तो बात समझ में आ ही जाएगी। आला हजरत कहते हैं फिक्रे मास बद बला, ऐश की फिक्र करना बुरी बला है, कभी ऐश की फिक्र ना करना। और हम आप क्या कहते हैं, मकान बनाकर ऐश करेंगे, दुकान बना के ऐश करेंगे, हवेली बनाकर ऐश करेंगे, कंपनी खोल के ऐश करेंगे, स्कॉर्पियो खरीद के ऐश करेंगे, मोबाइल खरीद के ऐश करेंगे। और आला हजरत कहते हैं फिक्रे मास बद बला, ऐश की फिक्र करना बुरी बला। भोले मात चापूसा, तुझे जितना दुनिया हासिल करना है कर ले, तू वहीं को जाएगा जहां से तू आया है, तू वहीं को जाएगा जहां से तू आया है। और ये वसूल भी है मुसलमानों, दस्तूर भी है, बंदा जहां से चलता है वहीं आने की उम्मीद रखता है। मैं छावनी से चला मगर ये उम्मीद करके कि 4 घंटे के बाद अपने घर को वापस चला आऊंगा। आप भी अपने घर से आए हैं ये उम्मीद करके कि 2-4 घंटे के बाद हम अपने घर को चले जाएंगे। एक अरबिस्तान कमाने जाता है घर से इरादा करके कि 2 साल के बाद मैं अरबिस्तान से हिंदुस्तान को चला आऊंगा। एक हाजी हज करने के लिए जाता है घर से इरादा करके 40 दिन के बाद हज करके चला आऊंगा। एक बच्चा कॉलेज में पढ़ने जाता है इरादा करके 4 घंटे के बाद पढ़ के चला आऊंगा। एक खरीदने वाला मार्केट में सब्जी खरीदने जाता है ये इरादा करके कि 2 घंटे के बाद सब्जी खरीद कर चला आऊंगा। पता चला कि बंदा जहां से चलता है वहीं आने की उम्मीद रखता है। जरा हम गौर तो करें आखिर हम चले कहां से हैं। तो अल्लाह की बारगाह से आए और वापस पलट करके रबी की बारगाह में जाना। अब मुसलमानों कपड़े में थोड़ा सा भी अगर कहीं दाग वगैरह लग जाए तो चूंकि आदत बिगड़ी हुई है, मैं दूसरे की बात क्या करूं। मैं खुद चलने से पहले पान खाया, अब पड़ गया मुसलमानों यहाँ पर थोड़ा सा छीटा तो उसके बाद से आला रखा, उसे छुड़ा रहा था बड़ी मेहनत करके। मगर दिल में अगर गंदगी जाके बैठ जाए तो वो किस आला से छूटेगा। सही बात है, गौर कीजिएगा। और अक्सर ये बीमारी पाई जा रही है, हसद की बीमारी। किसी के मकान को देख करके हसद करना, किसी के दुकान को देखकर हसद करना, किसी के मर्तबा को देख करके हसद करना। मगर हसद की आग में जलने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ है, दुनिया में भी जल रहा है वहां पर भी जलेगा, बहुत बड़ा नादान है। मिशकात शरीफ में है मुसलमानों, मिशकात में 4828 नंबर की हदीस बात। रावी हजरत अनस बिन मालिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया